Hello learners, today we will be solving the second question of hire purchase. The link of the question has been given in the description box. You are requested to download it and read it. In the question it is being given that Ram Limited has purchased a van and the cash price of the van it is given how much? 42,000 and the payment is made 10,000 down and 4 yearly installment of rupees 10,000 rupees each. Interest is charged at the rate of 10% per annum. So in the question it is given that the Ram has purchased a van whose cash price is 42,000 on hire purchase and the payment is making 10,000 as down payment and 4 installment of rupees 10,000 each. So it comes to how much? 40,000. So Ram Limited is making total payment of 50,000 rupees, which is higher than the cash price. It means this 50,000 is a higher purchase price. It includes the interest at the rate of 10% per annum on the amount outstanding. When we will solve the first question, when we will solve this question, we have to first prepare the analysis table, and in the analysis table, the installment given in the question will be treated as a final installment. Let us prepare the analysis table before solving the question. It is during the first year. Year is not mentioned, so I am writing it is first year. The cash price of the van it is how much? 42,000. At the starting, Ram has paid down payment of 10,000 rupees. So the balance amount it is how much? It is 32,000. The interest will be charged on the balance amount, that is 32,000. Multiplied by 10%, it comes to how much? 3,200. At the end of the first year, Ram has paid the first installment, that is 10,000, which includes the cash price as well as the interest. So now we will calculate the amount of cash price included in the final installment, that is 10,000 minus 3,200. It is equal to how much? 6,800. So this is the amount of the cash price included in the installment. We will deduct it to again calculate the amount outstanding after payment of the first installment. So 6,800 we will deduct, and at the beginning of the second year, the balance amount it is how much? 25,200. This is the completion of the first year, and the second year again the interest will be calculated on the balance amount, that is 25,200 multiplied by 10%. So it comes to how much? 2,520. The final installment amount it is 10,000 rupees. We will deduct this 10,000 minus 2,520, to it comes to how much? 7,480. And Ram Limited didn't pay the second installment, and after he is unwilling to pay the second installment, the asset will be repossessed by the hire vendor. Now in the question it has been given that you have to prepare Ram account and goods repossessed account in the books of hire vendor, and second it is in the books of Ram you have to prepare asset account and hire vendor account. So let's start to solve this question. First we will pass the entries in the books of Ram Limited. We have to prepare the account, means we will be posting directly into the ledger account. The first thing it is that Ram Limited has purchased the van. Entry will be van account debit to hire vendor account. Then I am debiting van, debit side में क्या लिख रहा हूँ? To hire vendor account. कितने का वैन खरीदे हैं? 42,000 रुपीस का. एंड हायर वेंडर अकाउंट में क्रेडिट हो रहा, तो हायर वेंडर के क्रेडिट साइड लिखा बाय वैन अकाउंट, दैट इज हाउ मच? 42,000. तो पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ? परचेज हुआ.
सेकेंड ट्रांजैक्शन अगर एनालिसिस टेबल से चेक करेंगे तो इट इज पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट पे किया किसको, हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर रिसीवर बना, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने यहाँ लिखा टू बैंक अकाउंट, कितना डाउन पेमेंट मिला हायर वेंडर को, दैट इज 10,000 रुपीज, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इट इज द इंस्टॉलमेंट ड्यू, एंड इफ द इंस्टॉलमेंट इज ड्यू इंटरेस्ट इज ऑल्सो ड्यू, तो इंटरेस्ट इट इज एन एक्सपेंस फॉर द परचेजर, इंटरेस्ट डेबिट होगा और हायर वेंडर क्या होगा, क्रेडिट, तो एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर क्रेडिट हो रहा, उसकी क्रेडिट साइड हमने लिखा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ है 3,200 रुपीज, तो हमने यहाँ लिखा 3,200, एंड जो हायर परचेजर है राम, उसने पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, तो यहाँ पे पे करेगा, किसको पे करेगा, हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर अकाउंट एंट्री क्या पास होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हमने यहाँ लिखा टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज, ये सारी एंट्री क्या है, फर्स्ट ईयर की एंट्री है, फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट ईयर। फिर चेक करेंगे कितना क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे आ रहा है ये 45,200 क्रेडिट साइड, डेबिट साइड डेबिट साइड 20,000, दोनों को माइनस किए तो यहाँ पे अमाउंट कितना है 25,200 रुपीज। अब हायर परचेजर के बुक्स में सबसे पहले हमने हायर वेंडर अकाउंट को क्लोज कर दिया, सेकंड हम चेक करते हैं यहाँ पे हमको एसेट अकाउंट को भी क्लोज करना है, तो एसेट पे क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट बताया है 10% और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो हमने यहाँ लिखा बाय डेप्रिसिएशन इट इज 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, इट मीन्स द ओपनिंग वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर ईयर में जितना भी एसेट की वैल्यू होगी उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है 42,000 का 10% 4,200, और फिर उसको हम क्लोज कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे क्लोज किए, तो जो वैल्यू है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वैन की ये आ गई कितनी 37,800, अगेन इट इज फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट ईयर। अब हम क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर सेकेंड ईयर का एंट्री पास करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस है फर्स्ट ईयर का उसको ओपनिंग बैलेंस में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा सेकेंड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज अमाउंट 37,800 ऑफ वैन, और हायर वेंडर का सेकेंड ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इट इज हाउ मच 25,200। उसके बाद एंट्री क्या पास होगी, उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ, इंटरेस्ट की एंट्री पास की तो इंटरेस्ट इट इज एन एक्सपेंसेस फॉर हायर परचेजर, एंट्री पास हुई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर की क्रेडिट साइड हमने लिखा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया 2,520। नेक्स्ट होगा इंस्टॉलमेंट पेड का, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है, यहाँ पे हम एंट्री पास नहीं कर रहे हैं पेमेंट की, और अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो एसेट क्या होगा, रिपोजेस होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि एसेट की वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिपोजेशन कितनी थी, एसेट आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सबसे पहले क्या चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन, तो हमने यहाँ लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अगेन रिटर्न डाउन वैल्यू है तो ओपनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग वैल्यू कितना है 37,800, उसका 10% 3,780। अब रिपोजिशन की वैल्यू कितनी बनेगी, जितना भी अमाउंट ड्यू है वो रिपोजिशन की वैल्यू बनेगा। यहाँ पर हमारा रिपोजिशन की जो एंट्री पास होगी
एंट्री क्या पास होगी, रिपोजिशन गुड्स का हो रहा है, गुड्स कौन लेके जा रहा है, हायर वेंडर लेके जा रहा है, तो हायर वेंडर वो रिसीवर बना तो उसको डेबिट किए, और क्या लेके जा रहा है, वैन हमारे पास से जा रहा है तो वैन को क्रेडिट किया। एंट्री क्या पास हुई, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू वैन अकाउंट, तो हमने यहां लिखा टू वैन अकाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। वैल्यू कितनी होगी, उस वैन की जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो क्या बनेगा, वैन की रिपोजिशन वैल्यू बनेगी। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 25,200, दैट इज द कैश प्राइस अनपेड, एंड 2,520 इट इज द इंटरेस्ट ड्यू। तो यहाँ पे जो वैन की रिपोजिशन वैल्यू आई वो आई 27,720, और इसी सेम को हम यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय हायर वेंडर अकाउंट दैट इज द रिपोजिशन ऑफ गुड्स। हमने यहाँ लिखा रिपोजिशन की वैल्यू कितनी है 27,720। तो यहाँ पे जो वैन है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हुई 37,800 माइनस 3,780, तो द फाइनल वैल्यू ऑफ द वैन इट इज 34,020। उस 34,020 के प्लांट को हायर वेंडर ने कितने में रिपोजेस किया है 27,720 में, कम में रिपोजेस किया है, इसका मतलब लॉस हुआ। लॉस किसका हुआ, हायर परचेजर का, तो लॉस की एंट्री पास करेगा। लॉस हो रहा है तो लॉस डेबिट हुआ और एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट क्रेडिट साइड हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज योर लॉस ऑन रिपोजिशन। लॉस ऑन रिपोजिशन कितना है 34,020 माइनस 27,020, तो यहाँ पे जो रिपोजिशन लॉस आ रहा दैट इज 7,000, और इसको भी हमने क्या किया क्लोज कर दिया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन में हमको दो लेजर अकाउंट बनाने बोला इन द बुक्स ऑफ परचेजर और दो सेलर के बुक्स में। सबसे पहले हमने क्या किया, परचेजर की बुक्स में दो लेजर अकाउंट बना लिए, दैट इज एसेट अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर के बुक्स में हमको क्या बोला है, हमको दो लेजर अकाउंट बोला है, एक हायर परचेजर का और दूसरा गुड्स और रिपोजर्स का। अब हम स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर सबसे पहली एंट्री होगी सेल्स की। सेल्स की एंट्री क्या पास होगी, राम अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। तो हमने फर्स्ट ईयर में पहली एंट्री पास हमने की टू हायर सेल्स अकाउंट एंड द वैल्यू इट इज हाउ मच 42,000 रुपीज। जैसे उसने सेल किया सबसे पहले क्या हुआ, अब राम लिमिटेड से इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ तो एंट्री पास हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब राम अकाउंट क्रेडिट हो रहा तो उस क्रेडिट साइड हमने लिखा बाय बैंक अकाउंट दैट इज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना मिल गया 10,000 रिसीव हो गया, दैट इज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, ड्यू होगा। अब परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है लेकिन सेलर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम होगा क्रेडिट, और उसको किससे लेना है, राम लिमिटेड से लेना है, तो राम हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री पास हुआ राम डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो हमने यहाँ लिखा टू इंटरेस्ट, इट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपीज का, उस पर इंटरेस्ट अमाउंट हमने कितना कैलकुलेट किया 3,200। तो हमने यहाँ लिखा 3,200, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट राम लिमिटेड ने पे कर दिया है, हमको मिल चुका है। तो हमने एंट्री पास की बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कितना 10,000, और फिर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर और पैसा मिला नहीं है तो हम बुक क्लोज कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज 25,200। तो टोटल आ गया कितना 45,220
45,200। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर। तो हमने यहाँ लिखा सेकेंड ईयर, यहाँ पे हमने लिखा क्या, ओपनिंग बैलेंस लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना लिखा हमने, 25,200। एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, और इंस्टॉलमेंट ड्यू होने से पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट की एंट्री पास होगी, इट इज एन इनकम। तो राम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो हमने यहाँ लिखा टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है यार सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, 2,520। अब ये 2,500 जो 20 रुपीज आया है, ठीक है। अब हायर परचेजर को सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना था, उसने पे नहीं किया, तो क्या हुआ, रिपोजेस हुआ गुड्स। गुड्स रिपोजेस कितने में हुआ, गुड्स रिपोजेस हुआ 27,720 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बाय गुड्स repossessed account and the value of goods repossessed is how much, 27,720। और इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। गुड्स रिपोजेस्ड हो चुका है। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन में ऐसा बताया है कि इस गुड्स जो रिपोजेस किया है हायर वेंडर ने, उसको बेच रहा है, क्या उस पर एडिशनल एक्सपेंसेस हो रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हायर वेंडर ने 1,280 रुपीज का एक्सपेंस किया है, और उस वैन को फिर उसने कितने में सोल्ड कर दिया, 31,000 रुपीज में बेच दिया। तो सबसे पहली बात तो गुड्स रिपोजेस में भी हम एंट्री पास कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर रिपोजेस हुआ, हमने यहाँ लिखा टू राम, कितने में रिपोजेस हुआ, 27,720। और इसको हमने क्लोज किया। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 27,720। एंड ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,720। अब क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, और ये जो एक्सपेंस हो रहा है स्पेसिफिकली इस गुड्स पे हो रहा है। ये गुड्स कौन सी है, ये गुड्स है वैन। एंट्री पास हुआ, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस किसके लिए हुआ, स्पेसिफिकली ये गुड्स रिपोजेस के लिए हुआ। तो एंट्री पास हुई, गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमने यहाँ लिखा टू बैंक, दैट इज एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंसेस इनकर हो रहा है, 1,280 रुपीज का। तो हमने यहाँ लिखा 1,280 रुपीज। और इसके बाद क्या हो रहा है कि जो हायर वेंडर है इस गुड्स को बेच रहा है, तो पैसा रिसीव होगा। पैसे को हम जो रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, और हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या पास हुआ, एंट्री पास हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोजेस अकाउंट। तो गुड्स रिपोजेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट साइड हमने यहाँ पे लिख दिया कितने में सेल हो रहा है, वो बाय बैंक अकाउंट 31,000 रुपीज में क्या हो रहा है, वो सेल हो रहा है। दैट इज सेकेंड ईयर और सॉरी ये सेकेंड ईयर है, अब ये थर्ड ईयर है। सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। अब हम चेक करेंगे कि भाई क्या इसमें कोई हायर वेंडर को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कि इट इज ब्रेक इवन। तो हम चेक कर लेते हैं। गुड्स रिपोजेस किया 27,720 में, उस गुड्स पे उसने 1,280 का खर्चा किया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 29,000 रुपीज। उस 29,000 की गुड्स को उसने कितने में बेचा, 31,000 में बेचा। इसका मतलब उसका हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट, गुड्स रिपोजेस क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या पास हुई, गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2,000 का हो रहा। बस आपको क्या याद रखना है, जिस साइड आपका कम आ रहा है वैल्यू, वहां पे आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, अमाउंट इट इज 2,000। और ये हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिए। और ये हो गया हमारा नेसेसरी लेजर अकाउंट कंप्लीट।
तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज के क्वेश्चन में क्या नया था, जो गुड्स रिपोजेस किया हायर वेंडर ने, अब उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। अगेन इट इज अ केस ऑफ फुल रिपोजेशन, क्योंकि यहाँ पे कितनी वैन बेची गई है, तो यहाँ हायर सेल्स में ऑन मेथड ऑफ हायर परचेज ओनली वन, और वो उसी को पूरा का पूरा क्या हो रहा है, वो रिपोजेशन हो रहा है। इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ फुल रिपोजेशन। और इस फुल रिपोजेशन के बाद क्या हो रहा है कि हायर वेंडर इस जो गुड्स उसने रिपोजेस किया है उसको कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंसेस करके उसको बेच दिया है। बेचने से फिर हमने देखा कि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का भी कंप्यूटेशन हो रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।